Hello everyone, welcome to the Menu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 10th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, guys, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So, first of all, we are going to having the first question. The question number 1 is Damascus is the capital city of which country? सो दमस्क जो है कौन सी कंट्री की कैपिटल सिटी है? बिकॉज कल हमने डिस्कस मींस लास्ट सेशन जब हमारे साथ हुआ उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर वाज एन अटैक बाय इजराइल वेयर एन एम्बेसी ऑफ ईरान वाज डिस्ट्रॉयड इन सीरिया, और उसके बाद फिर ईरान की गवर्नमेंट ने जो है एज ए रिटेलिएटरी वार्निंग इजराइल को कहा कि आपकी अब कोई अदर एम्बेसी भी सिक्योर नहीं रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी को डिस्ट्रॉय कर दें और फिर आपकी जो एम्बेसीज हैं वो सिक्योर रहें। सो दिस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। तो सीरिया की कैपिटल है आपकी दमस्क। क्वेश्चन नंबर 2, इन 1957 there were how many women candidates in लोक सभा इलेक्शन? लास्ट सेशन में इसको भी हमने डिस्कस किया था that there is a release by election commission regarding the data of the candidates who contested elections from 1957 to 2019. It was about the elections of Lok Sabha. तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आई थी और द हिंदू ने उस इश्यू को जो है रेज भी किया था और बताया था कि what has been changed since 1957 regarding the gender of the gender of the contesting candidates in the Lok Sabha elections, or it is also called general election या national general elections. So actually that time the number of women who contested elections in 1957 Lok Sabha elections, it was 45, और उसके बाद तो अब बहुत अच्छा खासा नंबर उसमें चेंज हो चुका है। अराउंड 726 कैंडिडेट्स वर contested in the election of 2019. So there was around 14 to 16 times growth in the contesting women in the Lok Sabha elections. Now the question number 3, the percentage of women in the Indian Parliament in 2019 was. This was also available in the same issue, and we also discussed about this issue, that how many percentage change were seen in the Lok Sabha candidates, especially that is the parliamentary candidates or members according to the gender. So actually it was around 14.4% parliament members were women. तो इसमें 14.5 जो 4% महिलाएं थी टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिकॉज जब स्टार्टिंग हुई थी तो अराउंड 4% के आसपास भी हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे पार्लियामेंट में जो विमेन हो। तो इसे देखने से अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, करंटली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन फॉर विच लोकसभा? तो अभी कौन सी लोकसभा के लिए इलेक्शंस हमारे यहाँ चल रहे हैं? बिकॉज यू नो द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड द डेट्स ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम 19th of April से इलेक्शन होने वाले हैं, उसका शेड्यूल ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। तो आपको ये बताना है कि अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो कौन सी लोकसभा के लिए है इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर और इट्स सीरियल नंबर। इट 18th या 20th या 23rd या none of the above. Actually the elections which are going on for current Lok Sabha election, that is upcoming Lok Sabha election, it is the 18th Lok Sabha which will be formed in June of 2024. तो अभी जून से हमारे यहाँ एक नई लोकसभा का जो है कंटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसका नंबर होगा 18th लोकसभा। इट मींस देयर हैव बीन टिल नाउ 17th लोकसभा इलेक्शंस, 17 लोकसभा इलेक्शंस and 17 Lok Sabha. So now it will be 18th time that we will elect
a new Lok Sabha. So the Lok Sabha from 2019 to 2024 was 17th Lok Sabha. So it was the 17th Lok Sabha. So after in 2024 to 2029, it will be 18th Lok Sabha. So know it. This is the basic question, and this kind of questions have been asked in previous examinations also. So always be cautious or be mentally prepared to face such kind of questions in your upcoming examinations. And question number 6, Suvidha portal. This was also discussed in the last session. So it is associated with which one of the following institution या organization. तो सुविधा पोर्टल जो है किससे एसोसिएटेड है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया. Actually guys, this is associated with the election commission of India because Suvidha portal has been launched by the election commission of India and it is being used for filing applications, to book some place for a procession or rally, or to have a new political party's office or other grievances. तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर देती हैं कि हमको किसी ए नाम के प्लेस पर अपनी रैली करनी है, तो उसके लिए पहले से परमिशन मिल जाती है, वो बुक भी हो जाता है. उसके अलावा हमको कहीं किसी एक एरिया में जो है प्रोसेशन मार्च निकालना है तो उसकी परमिशन मिल जाती है, या किसी बी नाम के प्लेस पर a particular political party or a candidate want to establish a new office, political office or the temporary office, then such kind of permissions are also granted by the Election Commission of India in such cases. So this is the portal here. You or any candidate which is associated with the elections, he or she can file an online application to book the place. So the local authorities or the administration can take appropriate actions or steps to manage that particular activity or event. Question number 7, GST in India was introduced in. Because in the last session we also discussed about a meeting by the Kelkar sir. Kelkar, who have been the president or the chairman of the 13th Finance Commission. ठीक है, can you tell me कि फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है एवरी 5 years पर, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर्टिकल के अंदर ये आता है? सो विच इज द एसोसिएटेड आर्टिकल टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 years. तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप मेरे को एक बार कमेंट में बताइए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. तो जीएसटी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो इस मीटिंग में जो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केलकर सर, उन्होंने अभी जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स रखे. उन्होंने ही एम्फसाइज्ड द एसेंशियल रिफॉर्म्स इन जीएसटी स्ट्रक्चर. सो जीएसटी की बात अगर हम करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017. इंडिया में जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था या आया था, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, ये 2017 में जीएसटी आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है. जीएसटी का देखो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा. जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट द अटैक्स आर गोइंग ऑन ईच अदर बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज इन सूडान. तो विच इज द कॉन्टिनेंट एंड कैपिटल सिटी ऑफ सूडान. देखो किस कॉन्टिनेंट में है सूडान और उसकी कैपिटल सिटी क्या है सूडान की, दैट इज द क्वेश्चन. तो क्या इसकी कैपिटल मीन्स ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल खार्टूम है, या ये साउथ अमेरिका में है, इसकी कैपिटल पनामा है, या इट इज इन साउथ अमेरिका एंड इट्स कैपिटल सिटी इज लिस्बन, और it is in Asia and its capital is Tehran. No, the correct answer is A, because Sudan is a country in Africa and Africa continent and its capital city is Khartoum. South America, Panama, no, and South America, Lisbon, no, and Asia and Tehran, no. So the correct answer is Africa and Khartoum. Which are the member countries of AUKUS? Recently it was in news because the member countries of AUKUS were discussing for the expansion its membership.
जो ऑकस एक ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप मीन्स एक सिक्योरिटी डायलॉग है या एक ग्रुप है कंट्रीज का, और वो अभी इसमें इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो हियर वी आर आस्किंग दैट हु आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप। सो इट्स इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। Actually, the the correct answer is Australia, United Kingdom, and USA, because its letters like A for Australia, UK for United Kingdom, or U US for United States of America. So this is the short abbreviated form of this AUKUS. So its members are Australia, United Kingdom, and USA. So these are the countries which are member of this group, and these countries are now trying to expand its membership, and they are now talking with Japan, and they are trying to convince Japanese Prime Minister or the authorities to join this group. Next is question number 10. AUKUS was formed in the year of. तो AUKUS को कब जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1998, 2023, 2021, 2015. So the correct answer is 2021. In this year, AUKUS was formed with the consent of these countries. It's an informal group of these countries, that is United Kingdom, Australia, and USA. The next question is, who is the Fumio Kishida? बिकॉज कल हमने बात की थी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन है ना, वो उनकी मीटिंग है किसके साथ में? जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा के साथ में, और वो इस बात पर एम्फसाइज कर रहे थे दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान टू जॉइन द ग्रुप ऑफ ऑकस। सो प्राइम मिनिस्टर भी इसमें न्यूज में रहे और ये ऑकस ग्रुप भी अभी न्यूज में है। सो हु इज फ्यूमियो किशिदा? तो ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका हमारा प्रीवियस डे का सेशन का रिवीजन। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर टुडे। हुआ क्या है? 20 न्यू कंपनीज बॉट पोल बॉन्ड्स, अ पनिशेबल ऑफेंस। देखो, नॉर्मली हम अगर बात करते हैं तो पोल बॉन्ड का जब स्कीम आई थी तो उसके लिए एक लॉ पहले से था, और लॉ था 2013 के कंपनीज एक्ट में, उसका सेक्शन 182 which prohibited the buying of electoral bond for the companies which are not older than 3 years. मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बाय नहीं कर सकती, और वो किसी को पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 3 ईयर ओल्ड नहीं है, मीन्स उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन रिसेंटली अभी जब कुछ डेटा निकल करके आया है तो उसमें ऐसी 20 कंपनीज हमें देखने को मिली जिन्होंने अराउंड 103 करोड़ रुपीस का पॉलिटिकल डोनेशन दिया, और उनकी खुद की जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग था, किसी किसी का तो 1 ईयर से भी कम है, कोई 2 ईयर्स ही कंप्लीट किया है, और किसी ने 1 ईयर ही कंप्लीट किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखो आप इसको कैसे देख सकते हैं, जब करप्शन की बात आती है ना, कि 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कैसे हम कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, सपोज करो कि जो है कोई एक पर्सन है ए, उसकी पहले से ही 5 कंपनी चल रही है, ठीक है, और वो चाहता है किसी एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना, और इस कंपनी से पहले भी इस कंपनी के नाम से वो पहले दे चुका है। अब उसको वो चाहता है कि भाई एक्स जो पॉलिटिकल पार्टी है जब वो पावर में आएगी तो मेरी पसंद की पॉलिसीज बनाएगी। तो ए क्या करेगा, एक न्यू कंपनी रजिस्टर कराएगा और इसको डोनेशन दे देगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी बड़ी आसानी से पॉलिटिकल बॉन्ड परचेज करेगा और डोनेशन दे देगा। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लैक मनी है ना, उसको व्हाइट कैसे किया जा सकता है? फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट दिखाएंगे और पॉलिटिकल बॉन्ड में वो पैसा दे दिया जाएगा। जबकि वो कंपनी नॉर्मली रजिस्टर्स ही मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन ही अगर रिसेंटली हुआ है तो होगा क्या फिर,
जो कंपनीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कई बार ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द इलेक्ट्रल डोनेशन। तो उसके डोनेशन के लिए कई बार कंपनी को रजिस्टर किया जाता था। तो उसी को स्टॉप करने के लिए टू फाइट सच इंस्टांसेस देयर वाज एन सेक्शन 182 which were amended and which provided the ban or prohibition that the company which is not which is not older than more than the year 3 years, तो इन सच केसेस में वो पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती। लेकिन अभी रिसेंटली जो डेटा निकल करके आया तो उसमें बहुत सारी 20 कंपनीज हमको ऐसी मिली जो 3 इयर्स ओल्ड नहीं थी। इवन कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जो 1 ईयर भी ओल्ड नहीं थी। सबसे ज्यादा इन कंपनी ने डोनेशन दिया, जो ये मिली जो हमको 20 कंपनीज, इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी को डोनेशन दिया तो भारत राष्ट्र समिति नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको सबसे ज्यादा क्या मिला, पॉलिटिकल डोनेशन मिला। अराउंड 75% इसी को गया सारा का सारा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट और न्यूज पर, केजरीवाल टू रिमेन इन तिहाड़ जेल एज दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटीशन चैलेंजिंग ईडी अरेस्ट। देखो, केजरीवाल साहब अरेस्ट हो चुके हैं करप्शन के केसेस में, और अब इनका मैटर यह है कि इन्होंने ये कहा पब्लिक डोमेन में, मीडिया पर, आम आदमी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर ट्राइंग टू कन्वे द पब्लिक दैट केजरीवाल इज इनोसेंट and he has been targeted by political motives. But यहाँ एक बात आती है कि भाई आप जब जनता को क्यों कन्विंस करना चाहते हो, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप जो है ट्विटर पर, न्यूज़पेपर्स में आप इंटरव्यू देकर के बार बार ये बता रहे हो कि मैं इनोसेंट हूँ। तो यहाँ पर ये कहना है कि आप यही काम जो आप बार बार जनता को समझा रहे हो कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरे को इलीगली अरेस्ट किया है, आप यही चीजें कोर्ट में क्यों नहीं बता रहे? कोर्ट को दे दो ना अपने आप जो एविडेंसेस हैं, तो कोर्ट अपने आप डिसाइड कर लेगा। तो केजरीवाल साहब जो अरेस्ट हुए उसके अगेंस्ट में केजरीवाल साहब ने क्या किया, जो है प्ली फाइल की। उन्होंने केस फाइल किया कि मेरा जो अरेस्ट हुआ है वो इलीगल है और वो पॉलिटिकल मोटिव्स के थ्रू किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में कल इसकी जो है प्रोसीडिंग्स थी, और इसको तो देखो द हिंदू ने भी इसको इसमें दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया इनकी पिटीशन को। बिकॉज ये क्या कह रहे थे कि साहब मैं इनोसेंट हूँ और मेरे को मेरा जो डिटेंशन हो रखा है, मेरा जो अरेस्ट हो सकता है वो अगेंस्ट द लॉ है। तो दिल्ली के अगेंस्ट में अभी ये कहाँ पर है, तिहाड़ जेल में बंद है, ठीक है। तो वहां की जो जस्टिस थे, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, इन्होंने क्या किया, प्रोनाउंस किया जजमेंट को, अपने जजमेंट को कहा कि अरेस्ट ऑफ मिस्टर केजरीवाल बाय द ईडी कैन नॉट बी टर्म्ड इलीगल। बोला हम इसको इलीगल नहीं कह सकते, ये लीगल है। बिकॉज क्यों, उन्होंने ये किस बेसिस पर कहा, उन्होंने कहा कि मटेरियल विच हैज बीन कलेक्टेड बाय ईडी, मींस ईडी ने जितना भी मटेरियल कोर्ट को शो किया है, उसके पास में जो मटेरियल है उसके बेसिस पर आपका अरेस्ट तो बनता है, और आपका अरेस्ट इलीगल नहीं है, वो सारा का सारा लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ईडी जो था, ईडी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे मटेरियल कोर्ट के सामने पेश किए, कोर्ट में प्रेजेंट किए और समझाया कोर्ट को कि देखो हमने जो अरेस्ट किया है उसमें पॉलिटिक्स वगैरह इसका कोई मैटर नहीं है, यहाँ सारा खेल है करप्शन का, ठीक है। मेरे जो एक दोस्त है, रूममेट है मेरे इस समय, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, और तो कल वहां पर वो भी थे, तो वो भी बता रहे थे कि केजरीवाल साहब का केस में क्या इंसिडेंट था। तो देखो बात यही निकल करके आती है कि कोर्ट में आप करोड़ों रुपए के बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं, जो इंडिया के टॉप एडवोकेट्स हैं, उनको आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, लेकिन वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आपका जो डिटेंशन है वो इलीगल है। तो आप एक तरफ से फिर ये कहना चाह रहे हो कि कोर्ट भी क्या है, कोर्ट भी जो है बिका हुआ है, कुछ ऐसा ही तो समझाना चाह रहे हो आप जनता को कि मेरा अरेस्ट इलीगल है। तो आपका अरेस्ट अगर इलीगल है तो वो कोर्ट में प्रूव करो आप, जनता के सामने नहीं। बिकॉज भोली भाली जनता को तो हो सकता है लोग समझा लेते हैं, लेकिन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जब होती है तो बहुत कुछ पत्ते खुलते चले जाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा, केजरीवाल साहब ने अपना आर्गुमेंट दिया साहब कि मेरा जो अरेस्ट हुआ है वो बहुत गलत टाइम पर किया गया है, और इससे क्या होगा कि मेरी जो फ्रीडम टू फाइट इलेक्शन है और इसका जो टाइमिंग है वो इलेक्शन के टाइम पर उससे पहले किया गया है, तो मेरा जो इलेक्शन जो है हम इलेक्शन में ठीक से फाइट नहीं कर पाएंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है,
ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट में है, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड के अगेंस्ट में है। ये सब आर्गुमेंट उन्होंने, उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने दिए। ठीक है, तो फिर जो ईडी के एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि देखो, इसका इलेक्शन की टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जब कोई करप्शन का, कोई क्राइम का केस होता है तो उसमें आपकी ईडी ये थोड़ी देखेगी अरे नहीं 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 भाई, अभी इसको इलेक्शन फाइट करना है तो इनको हम अभी अरेस्ट ना करें। तो क्या कॉमन मैन को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई रुक जाओ जरा, मैं खाना खा लूं, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, या मैं बच्चों को स्कूल छोड़ करके आ जाऊं, उसके बाद मेरे को अरेस्ट कर लेना? क्या कॉमन मैन को ऐसा सुना जाता? नहीं, कॉमन पीपल को जो है धक्के मार करके पुलिस इतनी बदतमीजी से अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर जो एडवोकेट है ईडी के, उन्होंने कहा देखो, लॉ के सामने, बिकॉज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। आप कॉमन मैन हो या आप जो स्पेशल मैन हो, कानून के हिसाब से आपको अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट में और केस में, प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ये थोड़ी देखेगा कि आप जो है इलेक्शन के टाइम पर अरेस्ट हो रहे हो या किसी अदर टाइम पर अरेस्ट हो गए हो। उन्होंने कहा कि आपके साथ में इतना बहुत सारा मटेरियल मिला है, कोर्ट ने कहा, और वो इनफ है आपको जो है कस्टडी में रखने के लिए। तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप ये जो फालतू की बातें कर रहे हो कि साहब मेरे को गलत टाइम पर अरेस्ट किया गया, बोला आपका यहाँ पर मेन जो जो पिटीशन थी वो ये थी कि आपका अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो कोर्ट ने कह दिया आपका अरेस्ट इलीगल नहीं है, आपका अरेस्ट लीगल है, और आपकी यहाँ पर बेल की जो पिटीशन है वो नहीं है। बड़ी सिंपल सी है कि आपको लीगली अरेस्ट किया है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप अभी जुडिशियल कस्टडी में ही रहोगे। ठीक है, ईडी की कस्टडी से तो वो पहले बाहर निकल गए थे। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी और व्हाट इज ईडी की कस्टडी या पुलिस कस्टडी। जब जुडिशियल कस्टडी की बात होती है तो किसी भी पर्सन को जेल में रखा जाता है, और जब ईडी या पुलिस की कस्टडी होती है तो वो पुलिस लॉकअप में या उस एजेंसी जिसने अरेस्ट किया है उसी के साथ में वहां पर रखा जाता है इनको। तो कोई भी पर्सन पुलिस की कस्टडी में बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में थाने वगैरह में बहुत सारी बदतमीजियां या मारपीट उसके साथ में होती है। तो इसीलिए कई बार जब लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि साहब पुलिस कस्टडी से इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में वो जेल चले जाते हैं और वो जुडिशरी की नजर में होती है वो सब। ठीक है, तो ये सब डिमांड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कैंडिडेट्स हैव अ राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स, रूल्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक एमएलए है गुवाहाटी मीन्स असम साइड के, तो उन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन फाइट करते हैं उनके पास भी राइट टू प्राइवेसी है, और वो अपनी बहुत सारी चीजों को वोटर से छुपा सकते हैं। मामला यहाँ पर ये बनता है कि अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस में ये कहा, क्या कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जब केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, जो वोटर्स हैं दे आल्सो हैव राइट्स टू नो सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट। जिसको हम वोट करने जा रहे हैं उस कैंडिडेट की बेसिक डिटेल हमारे पास में होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये तो लीगल है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है। ऐसे ही एक रेलेवेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है कि वोटर जो है डिटेल मांग सकते हैं किसी कंटेस्टिंग जो है कैंडिडेट से, बट इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा करके उसकी एक एक चीज को मांग लें उससे। मीन्स अब आप उससे ये पूछ लें कि भाई आपके बेटे की, आपके सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है ना, और आपके बच्चे को क्या खाना पसंद है फूड में, या आपकी ससुराल कहाँ पर है, ससुराल में आपके कितने साले हैं, साले के कितने बच्चे हैं, या आपके जो ससुराल में आपके जो साले हैं उनके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में स्कूटी कितनी है, स्कूटी का नंबर क्या है, आपके साले के बेटे के पास में जो मीन्स जो है कितने लाख रुपए की भैंस है उनके पास में, बफेलो है। तो कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि ठीक है भाई, आप बेसिक डिटेल मांग सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप उसकी डिटेल में घुस जाओ और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजों को मांगना स्टार्ट कर दो।
तो कोर्ट का यहाँ पर कहना कि देखो जो कैंडिडेट है वो ऐसी बेसिक डिटेल्स देने के लिए लीगली बाइंड है, दोज आर कंसर्न विद द इलेक्शन एंड दोज आर कंसर्न विद द वोटर्स राइट्स। अब उसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। कैसे कि जैसे जब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल होता है तो उसमें एफिडेविट लगता है। एफिडेविट में आप बताते हैं कि आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है एंड व्हाट आर योर लायबिलिटीज, आपके पास में कितना कर्ज है। अब जब आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो अब ठीक है, आप अपनी कार बता दो, टू व्हीलर बता दो, है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपने आज से 2 साल पहले स्कूटी अपनी बेच दी थी, ठीक है, और स्कूटी आप सेल कर चुके थे और फिर आप कहे कि नहीं नहीं आपने तो ये तो बताया नहीं कि आपने 2023 में अपनी स्कूटी सेल कर दी थी या 2022 में, वो तो आपने बताया नहीं अपने एफिडेविट में। या फिर वो आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ आपके पास में जो शू है वो कितने पेयर शू हैं आपके पास में, आपके घर में कितनी स्पून हैं, कितनी चम्मच हैं। मीन्स बात समझ गए होंगे आपके यहाँ पर कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा ही एक केस था इन कैंडिडेट के साथ में, मिस्टर क्री थे, इनका केस चला 2019 में जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो इनका मैटर ये था कि इन्होंने अपनी एक स्कूटी वगैरह इनके पास में थी, और देखो ज्यादा बड़ी चीजें भी नहीं थी इनके पास, मारुति ओमनी थी जो एम्बुलेंस की तरह चल रही थी, टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल थी, एक काइनेटिक की छोटी सी स्कूटी थी। इनमें से कई चीजें तो वो बेच भी चुके थे और इन्होंने उस एफिडेविट में उसको नहीं लिखाया। तो अपोजिट इनके जो अपोजिट लोग थे उन्होंने इस पर केस बना दिया, इन्होंने साहब जो है अपनी सारी डिटेल्स नहीं दी, जबकि 2019 में ही कबाड़ी में बेच चुके थे। ठीक है, वो बोला इसकी डिटेल नहीं है ना। तो इसके फेवर पर देखो वहां के जो हाई कोर्ट था, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उन्होंने इनको पनिशमेंट भी दे दिया कि ये जो एमएलए थे। तो देखो आप कई बार कहाँ छोटी छोटी सी गलती हो जाती है कि कोर्ट भी चीजों को समझने में भूल कर देते हैं कि ठीक है जब किसी ने अपनी स्कूटी कबाड़े में बेच दी, वो क्यों बताएगा आपको कि कबाड़े में कितने रुपए की बेची हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पीटर हिग्स। पीटर हिग्स कौन है? देखो इनकी हो गई अभी डेथ, और इन्होंने डिस्कवरी की थी और इन्होंने एक थ्योरी दी थी गॉड पार्टिकल की थ्योरी। अब इनकी डेथ हो गई तो गॉड पार्टिकल भी जो है थोड़ा न्यूज में रहेगा एग्जामिनेशन में। पीटर हिग्स, और इन्हीं के नाम से इसी गॉड पार्टिकल को अनोदर नेम से भी जाना जाता है, दैट्स नेम इज हिग्स बोसॉन। इस पार्टिकल से भी इनको जाना जाता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनका नाम क्या है? पीटर हिग्स। इन्होंने एग्जिस्टेंस बताया था गॉड पार्टिकल का। एक ऐसा मटेरियल भी होता है कि जहां से सारे की सारे इस यूनिवर्स, दिस अर्थ, एवरीबडी हैज बीन फॉर्म्ड बाय दिस पार्टिकल। सो बेसिक पार्टिकल कोई होता है उससे सब कुछ बना, और उसी की हेल्प से यहाँ पर ये ट्राई कर रहे थे कि जो बिग बैंग हुआ उसके बाद में कैसे इस यूनिवर्स का, इस अर्थ का, प्लैनेट्स का, सोलर सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ, कैसे उनका कंस्ट्रक्शन हुआ। व्हाट इज बिग बैंग? देखो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग एक ऐसा इवेंट था जो फिजिसिस्ट अब एक थ्योरी में देते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है इट वाज अ सिंगल यूनिट, एक ही था, और इसमें एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े हुए, उसी से फिर क्या बने? हमारा सोलर सिस्टम बना, बहुत सारे प्लैनेट्स बने, बहुत सारे सैटेलाइट्स बने, बहुत सारे जो है एस्टेरॉइड्स वगैरह बने, सब इसी से जो है डेवलप हुए। तो दैट वाज द इवेंट ऑफ बिग बैंग। तो इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी डेथ अभी हो गई है, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखो इन्होंने करीब 1964 में अपनी थ्योरी दी। बाद में इनकी इस थ्योरी पर 50 इयर्स तक रिसर्च होता रहा, और जब एक मशीन बनाई गई दैट वाज द नेम ऑफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये LHC मशीन बनाई गई और इसमें इसके थ्रू रिसर्च किए गए। फिर जाकर के पता चला कि भाई कैसे कोई छोटे से छोटा पार्टिकल जो है बनता है, कैसे वो अपना मास गेन करता है और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। जब इसके लिए एक मशीन थी, तो वो एक कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, दैट इज सर्न, है ना। और सर्न ने 2012 में अपना एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, और जमीन के अंदर इन्होंने 27 किलोमीटर लंबी, 27 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई, और उसमें उन्होंने क्या किया? एक ब्लास्ट ऐसे ही किया जैसे बिग बैंग में हुआ था, छोटे लेवल पर किया, हालांकि 27 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है।
तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों के बॉर्डर वाले रीजन में इन्होंने ये मशीन बनाई। ठीक है, अगर आपको तो शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमको ध्यान है, हम बड़ी इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था जब 2012 में इसमें उस ब्लास्ट की बात चल रही थी। इस मशीन में, इसके अंदर जो टनल बनाई गई थी, तो उस समय पर मीडिया में इस तरह के रूमर्स और न्यूज चल रही थी कि अब ये जो वर्ल्ड है, ये अर्थ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? कि लोगों में, रूरल पॉपुलेशन में, और उसमें ये न्यूज फैला दी गई कि ये जो सर्न जो एक ब्लास्ट करने जा रही है, वो बिग बैंग की तरह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और उससे पूरी की पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा था उस समय कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय बहुत न्यूज चली थी, हम लोग भी सोचते थे कि क्या है ये। बाद में फिर इसको न्यूज़पेपर में ठीक से समझा कि क्या है भाई ये। तो इनको 2013 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, है ना। और उसके लिए मीन्स आज तक इनको जाना जाता है और आज भी बहुत सारे इसमें रिसर्च चल रहे हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर जस्ट जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हिग्स की, पीटर हिग्स की। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2013 में। किसके लिए मिला था? हिग्स बोसोन के डिस्कवरी या इस थ्योरी के लिए मिला था। ठीक है, तो ये रहा इनके बारे में बेसिस था। कई बार ऐसी पर्सनालिटी होती है, उनके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कि हिग्स बोसोन कौन थे, या ये पीटर हिग्स कौन थे, किस कंट्री के थे? तो ब्रिटेन के थे, है ना। और कब इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो 2013 में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि अपने रविंद्रनाथ टैगोर, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। तो आज तक उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल प्राइज से। सो वी ऑलवेज प्रिपेयर टू फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So now we are going to end today's session. So guys, bye bye, take care.